ओके स्टूडेंट्स, आज हम जो कल वाले लेक्चर का कुछ पार्ट बचा था उसको प्रूव करेंगे। एंड दैट इज नथिंग व्हाट इट इज। इफ if f is river integrable and c is a positive constant, then f is integrable with respect to c alpha. ओके, इट इज रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो अगर इंटू सी अल्फा करेंगे तब भी वो अल्फा को अगर सी अल्फा से रिप्लेस करेंगे तब भी वो इंटीग्रेबल रहेगा, रिमेन इंटीग्रेबल रहेगा। एंड साथ में इंटीग्रल ऑफ एफ डी सी अल्फा इज इक्वल टू सी टाइम्स इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा। इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन दिया हुआ है कि इफ एफ इज रिमेन इंटीग्रेबल है तो डेफिनेशन पार्ट या थ्योरम पार्ट यू कैन से कि फॉर गिवन एप्सिलॉन greater than 0 there exists a positive, not a positive partition, there exists a partition p of closed interval ab and यहाँ पे हम लिख क्यों सकते हैं दैट इज p is equal to a naught, a equal to x naught, x1, x2, so on, so xn equal to b. This is the partition. So definitely UPF alpha minus LPF alpha is less than epsilon by c. epsilon by c लिया क्योंकि c is a positive, तो epsilon by c ले सकते हैं because of we need some adjustment in the epsilon, so that's why we just take epsilon by c. So now UPF c alpha will be summation varies from 1 to n capital Mi c alpha I. So Mi is nothing but it is a supremum of f of x, and small mi is supremum of f of x in close interval xi minus 1 to xi. So definitely यहाँ पे mi तो एज इट इज रहेगा इंटू सी अल्फा आई। सो आई का सी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, तो वी कैन टेक इट एज ए कॉमन फ्रॉम सी अल्फा। सो अल्फा बाहर आ जाएगा, सी अल्फा सी बाहर आ जाएगा। सो वी लेफ्ट विथ summation mi alpha I, and that is nothing but it is UPF alpha. So now LPFC alpha is equal to summation small mi c alpha I. तो c को फिर हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, सो इट इज summation mi alpha I. This is nothing but it is UPF alpha. So what we get UPF c alpha comma minus LPF c alpha is equal to c times UPF alpha minus c times LPF alpha. So c common out आएगा और this is nothing but it is a less than epsilon by c. तो c की एडजस्टमेंट यहाँ पे काम आई हमारे। so c कैंसल आउट आएगा and this is less than epsilon. So we get UPF c alpha minus LPF c alpha is less than epsilon. So it means that f is integrable with respect to c alpha. Okay. So this is all about we have to prove. Now we have to prove in integral a to b f d c alpha is equal to c times integral a to b f d alpha. तो सिंस ये ऊपर हमने प्रूव किया कि यूपीएफ सी अल्फा इज इक्वल टू सी टाइम्स यूपीएफ अल्फा, फिर टेकिंग infimum both sides, so infimum of UPF C alpha is equal to infimum of C times UPF alpha. So C can be cancel out. So
C times infimum of UPF alpha, and this is infimum of UPF alpha is nothing but it is integral a to upper integral a to b f d C alpha is equal to C times integral upper integral a to b f d alpha. Also, f is integrable over, yeah, Riemann integrable with respect to alpha. So upper integral is equal to integral a to b f d C alpha, and also f is integrable with respect to alpha. So that's why upper integral f d alpha is equal to integral a to b f d alpha. So we can replace these upper integrals by a simple integral. So it is integral a to b f d C alpha is equal to C times integral a to b f d alpha. So this is all about. So what we have done, we have done 4 properties. पहली प्रॉपर्टी हमने ये प्रूव करी कि सम ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शन इज आल्सो इंटीग्रेबल. दो अगर रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन है तो उनका सम भी रीमन इंटीग्रेबल होता है, और अगर एफ इंटीग्रेबल है तो सी टाइम्स एफ भी रीमन इंटीग्रेबल होगा. फिर उसके बाद हमने ये प्रूव करा कि अगर f1 ऑफ एक्स वो लेस देन इक्वल टू f2 ऑफ एक्स है तो इंटीग्रल f1 डी अल्फा जो होगा वो लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल f2 होगा. उसके बाद हमने सी पार्ट में ये प्रूव किया कि अगर f इज इंटीग्रल ओवर क्लोज इंटरवल ए बी है तो f रिवन इंटीग्रेबल होगा a टू c इंटीग्रेबल ओवर क्लोज इंटरवल a टू c, एंड f is also Riemann integrable over c to b, and this property also hold. उसके बाद डी पार्ट में हमने ये प्रूव किया था, so कि f is a Riemann integrable over R, and it is if the mod of f of x is less than equal to m in the closed interval ab, then mod of integral a to b f d alpha is less than m times अल्फा बी माइनस अल्फा ए. फिर उसके बाद हमने ये प्रूव किया कि इफ अल्फा इज रीमन इंटीग्रेबल विद रिस्पेक्ट टू अल्फा 1 and f is Riemann integrable with respect to alpha 2, then also f is Riemann integrable with respect to alpha 1 plus alpha 2. फिर हमने ये इंटीग्रल भी प्रूव करा, और आज हमने ये प्रूव किया कि if f is a Riemann integral over with respect to alpha, then it is Riemann integrable over with respect to c alpha, or this integral also. So now we move further. So now if we have a new theorem, that is if f is a Riemann integrable, yeah, Riemann tells us integrable over alpha with respect to alpha, then f square is also Riemann integrable on the closed interval ab. तो देखो इसको कैसे प्रूव करते हैं. सो f इज बाउंडेड, अगर Riemann इंटीग्रेबल है तो फंक्शन बाउंडेड होगा. सो अगर ये बाउंडेड है सो डेफिनेटली there exists a m and mod of x is less than equal to m for all x belongs to a closed interval ab. So since f is Riemann integrable, then we just use the theorem. Theorem is कि for given epsilon greater than 0 there exists a partition, and for that partition UPF alpha minus LPF alpha is less than epsilon, और यहाँ पे हमने थोड़ी एडजस्टमेंट के लिए epsilon by 2m यूज कर लिया. So same capital Mi is supremum of f of x and small mi is infimum of f of x in the closed interval
xi minus 1 to xi, and capital Mi dash is supremum of f square, and small mi dash is infimum of f square x in closed interval xi minus 1 to xi. So what we have to do, just take 2 points, then for any 2 points zeta 1 zeta 2 in the interval xi minus 1 to xi, we get mod of f square zeta 1 minus f square zeta 2 can be written as a plus b, या you can say a plus b minus a minus b. ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, a square minus b square is a minus b into a plus b. Okay, so on this part further we use a plus b mod is less than equal to a mod plus b mod. So it is mod of f zeta 1 plus f zeta 2. Okay, yeah, mod missing हो गया है, so you just write mod, and this is less than m and this is also less than m, so it is 2 time m and f, ये टर्म एज इट इज हमने एज इज रखा। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि अब व्हाट वी गेट कि एफ स्क्वायर जीटा 1 और एफ स्क्वायर जीटा 2 की जो वैल्यू का मॉड है वो डेफिनेटली इज लेस देन इक्वल टू ट्वाइस 2 टाइम m ऑफ f ऑफ जीटा 1 माइनस f ऑफ जीटा 2। सो इट मीन दैट यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सुप्रीमम और इन्फीमम के बीच में जो डिफरेंस होगा एफ स्क्वायर के, वो डेफिनेटली लेस देन होगा 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स जीटा 1 माइनस एफ ऑफ जीटा 2 के लिए। सो डेफिनेटली यहाँ से हमने कंक्लूड कर लिया कि ये क्वांटिटी डेफिनेटली इससे कम रहने वाली है। तो capital Mi dash minus small mi dash is less than twice of m small mi minus capital Mi minus small mi. So we just multiplying both sides by delta alpha e and taking sum ले लिया फिर हमने इसके ऊपर 1 to n. So this is nothing but it is UPF square alpha, क्योंकि m dash किसका में सुप्रीमम है f square का, so that's why this is UPF square alpha, and this is again it is LPF square alpha is less than equal to twice of m UPF alpha minus LPF alpha, and this quantity is less than twice of, हमने ये less than twice of sorry epsilon by 2m माना है, इसको हम इक्वेशन 1 कर सकते हैं। so y using 1 2m कैंसिल हो जाएगा, so what we get UPF square alpha minus LPF square alpha is less than epsilon. So it means that f square is Riemann integrable over alpha with respect to alpha. Got it? तो ये प्रूव करना था। Now we move further. We have to prove, अच्छा इसका वन मोर प्रूफ, इसका प्रूफ ऐसे भी हो सकता है स्टूडेंट्स। इसमें थोड़ा सा मेरे को भी इसमें कंफ्यूजन था, बट इफ वी यूज दिस वन, दिस इज आल्सो सिंपल वन। ये थ्योरम हमने पढ़ रखा है कि एफ अगर इंटीग्रेबल है और पाई जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में, तो फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स भी इंटीग्रेबल होता है, ठीक, दैट इज एच। तो यहाँ पे इस थ्योरम को यूज करते अगर हम फाई की वैल्यू टी स्क्वेयर ले लें, फाई ऑफ टी इज टी स्क्वेयर ले लें, और टी स्क्वेयर डेफिनेटली कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, तो इन दैट केस फाई ऑफ एफ भी क्या होगा, रीमन इंटीग्रेबल होगा। सो फाई ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ स्क्वेयर, दैट विल बी रीमन इंटीग्रेबल। सो वी कैन यूज दिस थ्योरम आल्सो।
So you can check. So, but if you have to use this theorem, so first of all you have to prove this theorem firstly, and then we use this result. Then we can prove f square is integrable over closed interval AB with respect to alpha. Now, next theorem is again is very important one. So f Riemann integrable है, g Riemann integrable है over in closed interval AB. Then we have to prove f into g is also Riemann integrable, and mod of f is also a Riemann integrable, and mod of integral a to b f d alpha is less than equal to integral a to b mod of f d alpha. To have to be prove these two. So दिस इज द फर्स्ट वन, क्योंकि हमने सम के लिए कर लिया था, सम के लिए प्रूव कर लिया था कि इफ f1 f2 दोनों रीमन इंटीग्रेबल है तो f1 प्लस f2 भी रीमन इंटीग्रेबल होगा. दिस इज नाउ प्रोडक्ट. दो फंक्शन अगर रीमन इंटीग्रेबल है तो उनका प्रोडक्ट भी रीमन इंटीग्रेबल होगा. तो इसको कैसे ही प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले ये देखो, सिंस f इज ए रीमन इंटीग्रेबल, g इज रीमन इंटीग्रेबल, सो माइनस g भी रीमन इंटीग्रेबल होगा. क्यों? क्योंकि वी हैव ए रिजल्ट. क्या रिजल्ट है हमारे पास कि अगर f1 रीमन इंटीग्रेबल है तो c टाइम्स f1 भी रीमन इंटीग्रेबल होता है. तो c की वैल्यू -1 ले लो, तो डेफिनेटली अगर g रीमन इंटीग्रेबल है तो c इंटू जी भी रीमन इंटीग्रेबल होगा. तो c की वैल्यू -1 यूज कर लेंगे, दैट्स वाई माइनस जी भी रीमन इंटीग्रेबल होगा. सो अब ये ऑलरेडी हमने रिजल्ट पढ़ रखा है कि अगर f1 रीमन इंटीग्रेबल है, f2 रीमन इंटीग्रेबल है, तो f1 प्लस f2 भी रीमन इंटीग्रेबल होगा. तो डेफिनेटली अगर f और g रीमन इंटीग्रेबल है तो f प्लस जी भी रीमन इंटीग्रेबल होगा, और f और माइनस जी भी रीमन इंटीग्रेबल है तो f प्लस माइनस जी, दैट इज f माइनस जी, इज आल्सो रीमन इंटीग्रेबल. ठीक. वाई वी यूजिंग दिस? सो नाउ अगर ये दोनों रीमन इंटीग्रेबल है स्टूडेंट्स, तो इनका स्क्वायर भी रीमन इंटीग्रेबल होगा. अभी हमने ऊपर प्रूव करा कि f इज रीमन इंटीग्रेबल, देन f स्क्वायर भी रीमन इंटीग्रेबल होता है. मतलब f को f से ही मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो रीमन इंटीग्रेबल रहेगा. तो डेफिनेटली ये रीमन इंटीग्रेबल हो गया, और ये दोनों रीमन इंटीग्रेबल हैं तो दोनों का डिफरेंस भी रीमन इंटीग्रेबल होगा, क्योंकि ये आपका बन जाएगा c टाइम्स रीमन इंटीग्रेबल होगा, c की वैल्यू -1 ले लो. तो दैट्स वाई दिस माइनस दिस आल्सो रीमन इंटीग्रेबल. और इसको अगर हम c से मल्टीप्लाई कर दे तब भी ये रीमन इंटीग्रेबल होगा. तो c की वैल्यू 1/4 ले ली मैंने. क्यों ले ली 4? क्योंकि 4 अंदर बनेगा तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा. अब इसको ओपन करें तो डेफिनेटली एफ स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और दिस इज 2 टाइम्स एफ जी एंड दिस इज 2 टाइम एफ जी, सो इट इज 4 टाइम्स एफ जी. सो 4 कैंसिल हो जाएगा. वी लेफ्ट विद दिस. सो सिंपल प्रूफ. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वी हैव टू प्रूव एनी वन ऑफ द थ्योरम. चाहे आप ये वाला प्रूव कर दो या ये वाला प्रूव कर दो, तो कम से कम अगर 6 नंबर या 8 नंबर का क्वेश्चन आता है तो एक थ्योरम तो हमको प्रूव करनी चाहिए. इसके 6 नंबर तो नहीं मिलने वाले. ठीक. ये 10 नंबर. अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं. सो इन द सेकंड पार्ट वी हैव टू प्रूव f mod इज रीमन इंटीग्रेबल. ये प्रूव करना है हमने. सो सबसे पहले f इज रीमन इंटीग्रेबल, सो वी जस्ट यूज द डेफिनेशन थ्योरम, and theorem is for a given epsilon greater than 0 there exists a partition p. ये partition ले ली of closed interval ab, then upf alpha minus lpf alpha is less than epsilon. We give it equation 1. So now we just taking capital Mi is supremum of f of x and small mi is infimum of f of x in the closed interval xi minus 1 comma xi, and small capital Mi dash
is supremum of f of x mod of f of x का ये सुप्रीमम माना, और स्मॉल एम आई डैश इज infimum of mod of f of x in the closed interval xi minus 1 to xi. So again same procedure, we take 2 points zeta 1 zeta 2 in the interval, closed interval xi minus 1 to xi. So we have this result, mod of f zeta 1 minus mod of f zeta 2 लेस देन दिस. तो ये मैंने यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, क्योंकि हमें पता है a माइनस बी मॉड जो होता है वो ग्रेटर देन a मॉड माइनस बी मॉड होता है. ठीक, और इसके ऊपर मॉड लगा लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोनों में. ठीक, सो डेफिनेटली डबल मॉड की जरूरत नहीं है यहाँ पे. सो ये लिखा हमने दिस क्वांटिटी, थोड़ा सा रोटेट करके लिखा हुआ, ये क्वांटिटी इधर लिखी है, ये इधर लिखा है. सो mod of a minus mod of a minus mod of b less than equal to mod of a minus b. So because of this formula we just write this. तो यहाँ से ये कंक्लूड हो रहा है स्टूडेंट्स, देखो ये mod f है, ये mod f है, और इधर ये क्या है f of zeta 1 f of zeta 2. So it means that mod of x का हर क्वांटिटी इस क्वांटिटी से कम ही रहने वाला है मॉड ऑफ दिस से. तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सुप्रीमम और इन्फीमम के बीच में जो डिफरेंस होगा मॉड ऑफ एक्स के लिए, वो डेफिनेटली लेस देन होगा सुप्रीम डिफरेंस ऑफ सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स. जस्ट आप ये दिमाग में नहीं लगाना है आपने कि ये इससे आया है. नो, वी जस्ट गेट द आइडिया कि यहाँ पे अगर दो टर्म्स का हम डिफरेंस लेंगे, सो दैट विल बी दो टर्म इन द सेंस कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स की दो कोई भी वैल्यूज अगर इस इंटरवल्स में लेंगे तो उनका डिफरेंस जो होगा वो इससे कम आएगा. तो डेफिनेटली उन वैल्यूज में ही कहीं ना कहीं मैक्सिमम और सुप्रीमम और इन्फीमम होने वाला है. तो जो इन इस इंटरवल के अंदर हर पॉइंट के लिए वैलिड है वो सुप्रीमम और इन्फीमम के लिए वैलिड होगा. So that's why we write the above relations, just that we must have capital Mi dash minus small mi dash is less than equal to capital Mi minus small mi. Got it? बाकी आगे तो फिर रेपिटेशन ही है. थ्रू आउट हमने डेल्टा अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया और समेशन ले लिया ओवर द पार्टीशन P. So I varies from 1 to n. So this is nothing what it is, UPF mod. क्योंकि ये mi dash जो है वो किसका सुप्रीमो में mod of f का. So that is why that is UPF mod alpha minus this is LP mod f alpha, and this is less than, and this is UPF alpha and this is LPF alpha. So by equation 1 UPF my alpha minus LPF alpha is less than epsilon. So यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर दिया कि जो अपना UPF f mod alpha minus LPF f mod alpha जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है. सो mod of f is Riemann integrable over closed interval AB. नाउ तो ये पार्ट तो हो गया. नाउ वी हैव टू प्रूव कि जो इंटीग्रल है, तो हमने प्रूव कर दिया कि कोई फंक्शन अगर रीमन इंटीग्रेबल है तो उसका मॉड भी रीमन इंटीग्रेबल होगा. नाउ वी हैव टू प्रूव कि मॉड ऑफ इंटीग्रल एफ डी अल्फा इज लेस देन इंटीग्रल ए टू बी एफ मॉड डी अल्फा. ये प्रूव करेंगे हम. तो सबसे पहले हमारे पास ये रिजल्ट होता है, ये बीएससी क्लासेस में पढ़ते हैं हम, कि जो एफ होता है वो अपने माइनस मॉड एक्स से और एक्स से बड़ा होता है और ये इस छोटा होता है. ठीक, इट इज वैलिड फॉर एवरी रियल नंबर, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर यू कैन से. सो दैट्स वाई यहाँ फंक्शन के लिए भी ये होल्ड करेगा. सो आल्सो वी नो कि अगर f1 f2 रीमन इंटीग्रेबल है
तो f1 और साथ में f1 ऑफ x जो है वो लेस देन इक्वल टू f2 ऑफ x है, तो डेफिनेटली इंटीग्रल ओवर f1 डी अल्फा जो होगा वो लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल f2 डी अल्फा से छोटा होगा। ये भी हमने डिस्कस भी किया ऊपर। तो ये दो रिजल्ट हम कंबाइन करें तो इट मीन दैट इंटीग्रल ऑफ दिस जो इनइक्वल इनइक्वालिटी इन तीनों में होल्ड कर रही है वो इंटीग्रल के लिए भी होल्ड करेगी बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट। ठीक। सो एफ इज रिमन इंटीग्रेबल, सो एंड mod of f is also Riemann integrable, just we have proved in the above. So minus mod f भी Riemann integrable होगा। क्यों? वही बात आ गई कि अगर f1 Riemann integrable है तो c f1 भी Riemann integrable होगा, और c की वैल्यू -1 पुट कर दो तो ठीक, कोई लॉजिक लगा यहाँ पे। उसके बाद ये वाला रिजल्ट हमने यूज कर लिया, तो थ्रू आउट हमने मॉडल इंटीग्रल के लिए तो इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ए टू बी f d alpha is less than equal to integral a to b f d alpha less than equal to integral a to b f d alpha। गॉट इट। सो यहाँ से हम ये रिजल्ट लगा सकते हैं कि माइनस ए इज लेस देन एक्स लेस देन ए है, तो डेफिनेटली मॉड ऑफ एक्स होगा वो लेस देन ए होगा। by using this result what we get mod of this is less than equal to integral a to b f mod d alpha। तो यही प्रूव करना था स्टूडेंट्स। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी फिर हम कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा चेक कर लेना अच्छे से।